So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Anurag with us. Anurag, would you like to introduce yourself once? Yeah, sure, Ashish. Thank you for inviting me. So, hi Ashish, my name is Anurag Sharma, and currently I am pursuing my BTech from Computer Science and Engineering from Manitoba. And currently I am in final year, and that is semester. And a basic thing about me that from electric, I have admitted as an electrical engineer in Manitoba, but by scoring good CG, I have switched my branch from electrical to computer science. And then in final year, I got the offer from JP Morgan and GS. That's all about me. Thank you. Nice man, nice. So as you guys can see, he has cracked the offer from JPMC, which is what we will be talk about in today's video. But apart from that, he has also cracked an offer from Amazon as well. So you can say that he has a good amount of experience in problem solving. So we'll be getting to know his entire journey. So Anurag, can you start us off with your interview experience at JP Morgan? Like what were the interview rounds like? What all questions were asked and what all happened? ओके, श्योर। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ लाइक फर्स्ट इनिशियल लेवल से। सबसे पहले जेबी मॉर्गन आते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन वी गॉट ओए ऑन लिंक ऑनलाइन असेसमेंट। उसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन थे एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। तो 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन तो ग्राफ पे था एंड एक क्वेश्चन था लाइक ट्री एंड ग्राफ मिक्स, मोस्टली डीपीएन ग्राफ। तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उससे लिंक करके क्वेश्चन बनाया था हमने। जैसे रिसोर्सेज़ को एलोकेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसेप्ट आता है, तो उसके बेसिस पे बनाया था। देन हमने नेक्स्ट राउंड में गए और उसमें था फॉर एग्ज़ाम्पल हायरव्यू इंटरव्यू, एआई बेस्ड इंटरव्यू था। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन दिए थे लाइक एक प्रॉब्लम फेस किया आपने, लाइक कॉमन बिहेवियर क्वेश्चन। Cracking the top companies' interviews is not an easy thing to do. You need to master DSN problem solving, you need to master development, system design, CS fundamental, low level design. You need to master all of these things if you want to crack the top interviews, the FANG level interviews. And let me give you guys a great resource that you can use to learn and master all of these things. And I'm talking about Educative. So, Educative is a learning platform and they have content on everything. They have content on DSN problem solving, on how to clear the coding rounds, the coding interviews. They have the world's best content on system design, how to clear the design interviews, and they have content on CS fundamentals and development with the latest tech stack, and pretty much everything that you will be needing in your placement journey. And on top of this, they have AI based mock interviews. So it will be like AI taking your mock interview just like in a real setting, and then it will give you feedback so you know what to focus on so that you're prepared for the real deal. And you're getting all of this under one subscription. And the best part is that you're getting more than 70% off on that subscription right now. So I highly recommend that you check it out. I've given a link in the description box out. You can check it out for yourself. You can see the platform out for yourself. So I highly recommend getting it if you're someone who's serious about cracking the top companies and you want to amp up your learning. Again, you can check it out. And now let's get back to the video. हाँ, जैसे कुछ प्रोजेक्ट में डिफ़िकल्टी फेस करी हो, कभी टीम मेंबर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, हाउ यू मैनेज दैट, बेसिक दैट टाइप क्वेश्चन। देन उसके बाद हमारे पास आता है कॉल दैट यू आर सिलेक्टेड। देन उन्होंने बताया कि आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ पे लोकेशन चाहिए हैकाथॉन की, बिकॉज़ जेपीएमसी कोड से हायरिंग करती है मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनने भरवाया था, तो मैंने था लाइक बाय डिस्कसिंग विद आवर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो मैंने हैदराबाद भरा था। देन उन्होंने फिर कंटीन्यूअस कुछ सेशन करे, 5 से 6 सेशन, लाइक सबसे पहले गिटहब गिटहब सिखाया। देन उसके बाद उन्होंने सिखाया कि हाउ टू यूज़ एआई टूल्स, बिकॉज़ एआई टूल का ज़माना है, अगर एआई टूल्स यूज़ नहीं करोगे देन यू विल लैग बिहाइंड। एंड हैकाथॉन इज़ लाइक फिक्स्ड टाइम, यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट इन दैट टाइम ओनली। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, कैसे टीम में कोलैबोरेशन करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन देना कैसे है, वहाँ पे क्या-क्या होगा, पूरा डिटेल्स। देन उसके बाद हम पहुँचते हैं हैदराबाद। दैट वाज़ माय फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, उन्होंने स्पॉन्सर करा था। तो उसके बाद मैं हैदराबाद पहुँचता हूँ, ऑफ़िस जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग का ग्रैंड वेलकम होता है। देन हमको थोड़ा-सा बताया जाता है कि एग्ज़िट किट क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स, कि कुछ इमरजेंसी होती है तो आप कैसे आप उससे बच सकते हो। देन उसके बाद उन्होंने हमको उसमें मेनली क्या होता है, एनजीओज़ आते हैं, 4 एनजीओ आए थे हम लोग के टाइम पे। तो मेरे को मिला था, उससे पहले वो क्या करते हैं कि हमारे पास एक फिक्स टाइम रहता है, उसमें हमें चूज़ करना होता है, वोटिंग करके प्रेफ़रेंस देना पड़ता है, कौन-सा आपको चूज़ करना है एनजीओ। तो हमने जो चूज़ करा था वही हमको मिल गया था फॉर्च्यूनेटली। तो हम लोग का था कलाम फाउंडेशन से करके एक एनजीओ।
वो क्या करता था कि जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं और फैमिली मेंबर्स मेनली जो वैसे एरिया से कि लोग ज़्यादा स्टडी परस्यू कर नहीं पाते या फिर कुछ काम की वजह से बच्चे एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो मेनली वो उन लोग को पढ़ाते थे, उनकी जो फैमिली ऐसे मदर हैं, तो उनको सिलाई वगैरह सिखाना वैसा कुछ करके। तो उनका मेन प्रॉब्लम क्या था कि वो डेटा मैनेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई टेकी पर्सन नहीं था, टेक हैवी, तो उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कैसे क्या करें। और उनने अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, छोड़ के चले जा रहे थे। इसलिए उनने क्या करा कि हमसे पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनका जो भी प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जा रहे हैं, उसको पहले से प्रेडिक्ट कर लें कि वो जाने वाले हैं, तो हम उनको रोक सकते हैं। और उसके बाद हमने उसके बाद डिस्कशन करा और टीम में आइडिया सोचा कि कैसे क्या बनाएँगे। जैसे हमने सोचा कि हम एक डैशबोर्ड बनाएँगे, ताकि लोग को देखना आसान रहता है, ट्रैक करना कि कितने लोगों ने छोड़ के गया, कितने लोग हैं और साथ में देखा कि बच्चे कितनी बार आ रहा है, कितनी बार छोड़ के जा रहा है। तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने फिर एआई मॉडल भी ट्रेन करा ताकि उससे हमें पता चले कि वो जाने वाला हो सकता है। तो वहाँ से जो भी उसके मेंटर हैं, वो वहाँ से जाके उससे बात करें, उसको गाइडेंस दें कि हाँ भाई रुक सकता है तू। और उसके बाद फिर हमने और क्या किया कि ऐसे एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, साथ में जो उनकी फैमिली मेंबर्स मदर हैं, उनको भी करना है। तो हमने उनका अलग-अलग डैशबोर्ड बनाया, उनको पासिंग मार्क्स दिए, फेलिंग मार्क्स दिए, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, ताकि हम उसको और अच्छे से काम कर पाएँ। मेनली बेसिक ट्रैकिंग सिस्टम अच्छे से बनाना है और हैकाथॉन का क्या मेन आइडिया रहता है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दैट शुड बी सॉल्व्ड। मेरा स्टेटमेंट था कि हमको उनको टेक हैवी नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग बनाना है, यूज़र सेंट्रिक बनाना है और साथ में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो इसलिए कई लोगों ने क्या कहा, चैटबॉट बना लिए, तो टेक हैवी नहीं है तो उनको यूज़ करना आता ही नहीं है। तो हमने क्या करा था, हमारा आइडिया भी ये था कि हम उससे कुछ व्हाट्सएप इंटीग्रेट करें ताकि व्हाट्सएप पे लोग यूज़ करते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे जाके उसको सॉल्व कर पाएँ। एंड उसके बाद फिर और मज़े की बात बताता हूँ कि सबसे अच्छा क्या है चिट में, इट्स कोड फॉर गुड उसका नाम है, बट एक्चुअली दैट इज़ कोड फॉर फूड। उसमें मतलब कोडिंग करोगे 2 घंटे खाओगे, तो 2 घंटे कोडिंग में 2 घंटे खाओगे। लाइक मैं बताऊँगा, अगर मानोगे तो मैक्स टू मैक्स हम लोग 2 घंटे सोचे होंगे और 2 घंटे कोडिंग करें, जस्ट 4 आवर्स में एवरीथिंग ओवर। और बाकी में हमको पीपीटी बनाना, बाकी टाइम हम लोग फोटो खिंचवाएँ, मस्ती करें, खाना-पीना। लाइक खाना का तो जवाब ही नहीं, मतलब किसी का पोस्ट उठा के देखेंगे ना लिंक्डइन पे, तो डालेगा कोड फॉर फूड, उनका चलता ही वही है। एंड उसके बाद फिर स्किल इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड हुआ, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन्स पूछे। तो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाए थे, उसको प्रेज़ेंट किया और गिटहब रेपो मेंटेन करके रखना था। और उसका एक जो मतलब अभी फीचर आया है हम लोग के में कि हमने जो भी आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हो, एआई फुल यूज़ कर सकते थे आप, कोई इश्यू नहीं है। एआई फुल यूज़ कर सकते हो आप। तो हमको उसमें बनाना था कि कौन-कौन से प्रॉम्प्ट आपने यूज़ किया, तो प्रॉम्प्ट को बना के उनको सबमिट करना ताकि वो आइडिया ले सकें। और उसके बाद प्रेजेंटेशन वगैरह बना के सबमिट करी। फिर हम लोग का नेक्स्ट राउंड होना था आधे घंटे बाद। तो हम लोग बीच में थोड़ा खाना खाने गए, फिर प्रेजेंटेशन हुआ तो जजेस ने फिर क्वेश्चन पूछे। अ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हैकाथॉन में ध्यान रखना चाहिए। लाइक पहले तो यूज़र सेंट्रिक होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, दैट शुड बी यूज़र सेंट्रिक। देन सेकंड है कि आपका टीम टीम जो कोलैबोरेशन है, वो फेबुलस होना चाहिए। लाइक हमारी टीम में ऐसा था कि हम सब के सब लोगों ने प्रेज़ेंट करा। एक भी ऐसा नहीं था जो चुपचाप खड़ा है कोने में। मतलब मेरे जो कॉम्पिटिटिव टीम थी, उनका मुझसे अच्छा था प्रोजेक्ट, बट उन्होंने क्या किया, केवल एक लड़की बोल रही थी उनमें से, तो इस चक्कर में उनका फर्स्ट नहीं आए वो। तो सेकंड टीम कोलैबोरेशन हो गया, थर्ड प्रेजेंटेशन स्किल और चौथा आइडियाज़ तो आपका रहता ही है। और एक्चुअली क्या है, हैकाथॉन से क्या अच्छा होता है कि जब 24 आवर्स आप मेंटर के साथ रहते हैं, लाइक आई एम विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेपी मॉर्गन, लाइक हू इज़ एट पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उनके साथ इंटरैक्ट करना, नेटवर्किंग करना, दैट्स लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। उनके ऊपर अपने इंटरेस्ट का डिस्कशन करना, लाइक आई हैव इंटरेस्ट इन भगवद गीता। तो उनके साथ मेरा कम से कम आधा घंटा भगवद गीता पे डिस्कशन हुआ। एंड उसके बाद तो फिर हम लोग को गिफ्ट वगैरह मिली और इनिशियली मैं बताना भूल गया, हम लोग को टी-शर्ट मिली थी, एक हुडी मिली, देन आईडी कार्ड्स और उसके बाद वहाँ पे जितना भी आपको खाना है सब फ्री। दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ जेपी मॉर्गन बिकॉज़ टेंशन में लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो हमको सिखाता है कि आपको इक्वल करके सबको चलना है। ज़्यादा टेंशन भी नहीं, ज़्यादा मस्ती भी नहीं, बीच का रहना चाहिए। और दैट्स अबाउट द हैकाथॉन। Nice, nice, nice. तो काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, this code for good, not only for networking, having fun, but pretty much learning everything, Yeah. right?
काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो आप दे देंगे बाय द वर्क फॉर दैट। और दैट्स प्रीटी ग्रेट। तो थोड़ा आपकी प्रिपरेशन की रोज जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक यू सेड देयर वाज डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग की वॉल थी। स्पेशली अमेजोन का भी जैसा आपने इंटरव्यू दिया है उसमें भी डीएसए अच्छा खासा पूछते हैं। एंड देन यहाँ पे हैकेथॉन तो था ही, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी था, राइट? तो प्रिपरेशन के रोज जाते हैं आपके कि कैसे आपने प्रिपेयर किया। तो लेट्स स्टार्ट विद डीएसए। तो हाउ डिड यू गेट गुड एट डीएसए? हाउ डिड यू मास्टर डीएसए बेसिकली, सो टू स्पीक? एक्चुअली जब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में आया था, इलेक्ट्रिकल में लाइक जेईई दिया तो इलेक्ट्रिकल मिला। ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत इंटरेस्टेड हूँ इलेक्ट्रिकल में, बट आईसीएसई बोर्ड से 11th-12th किया था, तो 9th-10th तक मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, जावा। मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज था कि हाँ, कोडिंग होती है, थोड़ा कीबोर्ड की आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद फिर अच्छा सीजी आया, सीनियर्स से मेरा अच्छा कनेक्शन था, लाइक हमारा इंस्पायर सोसाइटी है कॉलेज में, तो सीनियर से बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो ब्रांच चेंज के लिए फॉर्म भर दिया, उसके ब्रांच चेंज हो गई। देन उसके बाद स्टार्ट होती है जर्नी कंप्यूटर साइंस की। देन मतलब अगर आपको आगे जाना है तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी रहता है। तो मेरे को बैक टू बैक गाइडेंस मिला। उसका मतलब बहुत मेजर रोल है मेरी लाइफ में। मेरे सीनियर्स हैं लाइक सम ऑफ द सीनियर फ्रॉम ट्रिपल आईटी आल्सो। तो उनने मेरे को गाइडेंस दिया कि कहाँ से क्वेश्चन लगाना है, लाइक लब लब बबर का ए टू जेड, लब बबर का 149 सीरीज़ है, ए टू जेड सीरीज़ ऑफ स्ट्राइवर। तो मैंने लब बबर से पढ़ना स्टार्ट करा और स्ट्राइवर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करा। देन फिर कोल्ड स्टोरेज माइक भी है, तो उनने भी बहुत अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में आंसर्स बताते हैं। तो दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? तो उसके थ्रू मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। और एक्चुअली सेकंड ईयर तो मेरे को थोड़ा बैलेंस करने में लग गया, क्योंकि ब्रांच स्विच करके आए हैं, कुछ सोचा भी नहीं था कि क्या करना है, एक्सप्लोर भी नहीं करा। एक्सप्लोर में इलेक्ट्रिकल कर रहा था कि कैसे गेट देना है, कैसे पीएससी में जाना है ना? देन हम स्टार्ट करा प्रिपरेशन अपना करना, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी बनाना, लाइक पीओटीडी करता था मैं डेली। मेरा स्ट्राइक कम से कम पहुँच गया था 300-400 डेज़ के आस-पास। तो मतलब कंसिस्टेंसी से आप करोगे तो एक क्वेश्चन भी करोगे, बहुत सही है। अगर नहीं आता तो वीडियो देख के लेकिन करना है। अगर आप डेली करते हो तो आपका थोड़ा बना रहता है मोमेंटम। और सेकंड फिर मैंने वेब डेवलपमेंट पे भी स्विच करा थोड़ा-सा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट भी ज़रूरी था। साथ में एआईएमएल कॉलेज में चल ही रहा था, तो मैंने मंस्टेक चूज़ किया और यूट्यूब से ही सीख-सीख के प्रोजेक्ट बना के, देख-देख के, पहले देख के प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसको बिना देखे बनाया, तो अंडरस्टैंडिंग होगा काम कैसे करता है। मेनली आपको आना चाहिए काम करता कैसे है। अगर आपको वो आता है देन वी हैव सो मेनी टूल्स नाउ, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, आप कोड तो जनरेट कर सकते हो, बट वो काम कैसे करता है दैट यू शुड नो, समझ रहे हैं? इसलिए उस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कोर सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, डीबीएमएस, वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन ये सारे सब्जेक्ट करके देन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल, देन योर टेक्निकल स्किल तो हो गया, और साथ में टीम कल्चर, सॉफ्ट स्किल्स, तो ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तब जाके कहीं उस स्टेज पे पहुँचते हैं। नहीं तो फिर डिफ़िकल्टी आती है। तो मैं कंक्लूड करूँगा मेनली कंसिस्टेंसी एंड गाइडेंस, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। स्पेशली कंसिस्टेंसी, राइट? कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, यू मे नॉट बी वेरी टैलेंटेड राइट ऑफ द बैट, बट अगर कंसिस्टेंटली इफ यू आर वर्किंग तो फिर श्योरली विल सी सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे। तो Sure. इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और राइट, जैसे हमने आपकी जर्नी की बात की, हमने आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात की, तो एनी एडवाइस यूड लाइक टू गिव एट द एंड ऑफ द वीडियो टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, जिनको भी एक जेपीएमसी अमेजोन जैसी कंपनी क्रैक करनी है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम? एक्चुअली जो एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ़ का फ़ेज़ रहता है कि आप जब टेक्निकल स्किल है, सही है, लेकिन अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, लाइक थर्ड ईयर में मेरा एक भी ओए क्रैक नहीं हुआ, इंटरव्यू तो पहुँचे थे, ओए क्रैक नहीं हुआ। एक कंपनी में हुआ था गैलमेंट्रिक्स करके, बट 12 डेज़ में मुझे उसको छोड़ना पड़ा बिकॉज़ ऑफ सम बैड हेल्थ एंड नॉट एबल टू कोप अप एट दैट टाइम बिकॉज़ ऑफ बैड हेल्थ। तो उसके बाद जो मेंटल टेंशन रहता है, लाइक थर्ड ईयर में आपका एक भी मतलब दोस्तों का गूगल फूट रहा है, माइक्रोसॉफ्ट फोड़ रहे हैं लोग, है ना? बड़े-बड़े गोल्डमैन सैक्स ऐसी कंपनी में जा रहे हैं और आप टॉपर हैं, मतलब सीजी अच्छा है, टॉपर है कॉलेज में, सब कुछ जानते हैं, लेकिन तब भी आपका ओए क्रैक नहीं हो रहा है, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको बहुत ज़्यादा चोट पड़ती है। तो उसके लिए लाइक आई एम डूइंग मेडिटेशन, चैंटिंग, लाइक रीडिंग भगवद गीता। तो ये चीज़ें क्या है, आपको बहुत मेंटल स्टेबिलिटी देंगे ना,
तो उसके बाद आप अपना लाइफ और अच्छे से जी पाएँगे। बिकॉज़ केवल टेक्निकल नॉलेज रहने से ये नहीं कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कई लोगों के पास है लेकिन वो बहुत सारे केसेस आते हैं लाइक अच्छा आपको पता है कि कुछ कर लेते हैं उल्टा-सीधा, तो उससे बचने के लिए आई विल सजेस्ट कि आपको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, थोड़ा चैंटिंग भी करना चाहिए और गुड एसोसिएशन में रहना चाहिए। वो गलत एसोसिएशन में रहेंगे तो आपका पढ़ाई भी इम्पैक्ट करेगा, साथ में आपका कैरेक्टर भी। तो हमको कैरेक्टर प्लस कॉम्पिटेंस दोनों में काम करना है। दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। Correct. That's some great advice. It's very important कि you're in the right energy basically, है ना? एक right energy, right Yeah. association होना चाहिए. That is very important क्योंकि वो आपका technical ability पे भी affect करता है कहीं ना कहीं directly or indirectly, right? तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत टफ रहता है एक्चुअली। जब आपके दोस्त एन्जॉय कर रहे हैं और आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फेज़। उसके लिए आपको बहुत मतलब दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदना, दैट यू शुड बी वन पॉइंटेड। तो मैंने उसको अपने जीवन में उतार के वन फोकस बिना किसी गलत संगति में पढ़ के अच्छे सीनियर्स के गाइडेंस में मतलब इंस्पायर सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है मेरे लिए। उन्होंने ऐसी क्लासेस दी भगवद गीता वगैरह की ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। All right, again, so that's some great advice right there. So I think that covers pretty much everything about Anurag's journey to crack JP Morgan. Hopefully we'll see another video about Amazon on the same topic soon enough. So make sure that you guys subscribe to the channel, and I'll give his LinkedIn so you can follow him and connect with him from there as well. So yeah, thank you so much Anurag for coming on the channel and sharing. Thank you. It's great experience for me also. Like it's my first podcast with Ashish. So I hope many of you will come and join us. Thank you.